آپ میرے ساتھ کھولیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جی اونچی آواز میں ہم سب کہیں گے، خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے آج پھر سے ہمیں کلام کو سننے کا فضل عطا کیا۔ آج کے میسج کا ہمارا ٹائٹل ہے شخصی نجات دہندہ۔ آج ہم شخصی نجات دہندہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ مختلف بے شمار دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے، اور یہاں پر جتنے مقدسین موجود ہیں اور اگر میری باہر تک آواز پہنچ رہی ہے تو ہر شخص کچھ دیر کے لیے کلام کی طرف توجہ کرے گا اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کیا یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ اگر جیزس آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ ہم کھڑا کریں گے۔ ایک سوال ہے، جی باجی بتائیں گی شخصی نجات دہندہ کا کیا مطلب ہے؟ جسے پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا اور مجھے بتائے گا کہ شخصی نجات دہندہ کا کیا مطلب ہے۔ ایک ہماری پاسٹر کانفرنس تھی، وہاں پر یہ سوال کیا گیا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے، لیکن شخصی نجات دہندہ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ نجات دہندہ کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور جیزس نے صلیب کے اوپر اپنی جان اسی لیے قربان کی تاکہ ہر شخص یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے اور ابدی زندگی حاصل کرے۔ جیزس نے صلیب پر جان تو دے دی، لیکن شخصی نجات دہندہ جب تک کوئی شخص یسوع کو قبول نہیں کرے گا وہ شخص ابدی زندگی کا وارث نہیں ہوگا۔ جی بات ایسے ہی ہے، جیزس نے تو صلیب پر اپنی پاک جان کو قربان کیا، لیکن شخصی نجات دہندہ جب تک ہم یسوع کو قبول نہیں کریں گے ہم ابدی زندگی نہیں پائیں گے۔ پھر سے میرا پوائنٹ وہی ہے، شخصی نجات دہندہ کا کیا مطلب ہے؟ نجات دہندہ کا ابھی ہم نے سیکھا کہ نجات دینے والا، لیکن یسوع نے تو ساری دنیا کے لیے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے ساری دنیا سے عزیز و محبت رکھی۔ اس میں کوئی مذہب، کوئی دھرم یا کوئی فرقہ یا رنگ، نسل، یہ چیزیں اس نجات میں یا محبت میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی، بلکہ خدا نے جتنی بھی مخلوق بنائی، اشرف المخلوقات انسانوں کو خدا نے بنایا، ان انسانوں کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آدم سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ یہ روحانی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کسی مذہب یا کسی فرقے کو چینج کرنے کے لیے خدا نے یسوع کو نہیں بھیجا، بلکہ جیزس کو یہوہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو انسان بدلنے کے لیے بھیجا،
ताकि जो इंसान का बागे अदन के अंदर जो रिश्ता टूट चुका था, वो रिश्ता, वो ताल्लुक बाप के साथ दोबारा से बहाल हो जाए। और उस ताल्लुक को बहाल करने के लिए यीशु ने अपनी पाक जान को कुर्बान कर दिया। तो यीशु तो निजात दहिंदा है, इसमें नो डाउट, हम सब जानते हैं, हमारा ईमान है। इसलिए चर्च का नाम भी खुदा ने दिया। जी यीशु, आपके चर्च का क्या नाम है? जी इटर्नल सैल्वेशन चर्च, अब्दी निजात चर्च, क्योंकि हम सब का फेथ है कि यहाँ पर निजात दहिंदा मौजूद है, जो हर बेटे को, उसको स्पेशली जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जीसस उस बेटे को अब्दी निजात बख्शता है। और निजात का मतलब क्या है? लफ्ज़ है सैल्वेशन, इसका मतलब क्या है? छुटकारा, रिहाई। कई दफ़ा हम बीमारियों में जकड़े होते हैं, तो बीमारियों से छुटकारा मिल गया, जी बीमारियों से हमें निजात मिल गई है। हम गुर्बत के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, तो जीसस ने हमें परेशानियों से छुड़ाया, परेशानियों से निजात बख्शी, रिहाई बख्शी। निजात का मतलब है छुटकारा, रिहाई, और अब्दी निजात हमेशा का छुटकारा। और इटर्नल ये जो सैल्वेशन है, अब्दी निजात, अजीजों इस बात को अपने दिल में बिठा ले, जीसस के अलावा दुनिया में, आसमानों पर, जमीन के नीचे कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसके नाम से या जिसके वसीले हमें अब्दी जिंदगी मिले, अब्दी निजात मिले। सिर्फ यीशु मसीह नासरी हमारा निजात दहिंदा है, हमारा छुड़ाने वाला है और हमें अब्दी जिंदगी देने वाला है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जो शख्स यीशु को सिर्फ निजात दहिंदा मानता है, उसे अब्दी जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम यीशु को निजात दहिंदा तो मानते हैं, तो वो गैर कौमें भी यीशु को निजात दहिंदा मानती है। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं कि वो चर्च में आते हैं, मज़बा पर आते हैं, हमसे पहले वो शिफा को रिसीव कर लेते हैं और वो मानते हैं कि जी यीशु निजात दहिंदा है। लेकिन मैं भी उन्होंने मौजज़ा भी हासिल किया है, लेकिन तो भी वो अब्दी जिंदगी ना पाए। अब्दी जिंदगी का क्या मतलब है? ये आज हम टीचिंग मैसेज को सीख रहे हैं, वो बेसिक्स चीज़ें हैं जिनकी हमें समझ होनी चाहिए। और अगर एक माँ को समझ होगी तो वो अपने बेटे को बताएगी। अगर एक बाप को इन बातों की समझ होगी तो वो अपने बच्चों को ये बातें बताएगा। अगर बाप को ही समझ नहीं तो कैसे हम अपने बच्चों को बताएंगे? क्यों हमारे बच्चे मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने मजहब को नहीं जानते, जिसकी वजह से कोई भी सवाल हमारी बाइबल मुकद्दस में किया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें जवाब देना नहीं आता। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा था कि तू शरीयत की बातों को, अपने गले का तौक, अपने गले का तावीज़, ये लफ्ज़ जो तावीज़ है आजकल तो हम इसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन तौक बाइबल में जिस तरह लिखा हुआ है कि अपने गले में मढ़ कर उसे बांध लेना, अपने माथे पर लिखना, चौखटों पर लिखना। एक जगह पर लिखा है कि शरीयत के अल्फाजों को बड़ा बड़ा लिखना ताकि रस्तों में आते जाते लोग उसे पढ़ें, क्योंकि खुदा जानता है कि मैं पाक हूँ, मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज पाक है। जो शख्स इन्हें पढ़ेगा उसकी आंखों में, कानों में, उसके दिल और दिमाग के अंदर पाकीज़गी आ जाएगी, हॉलीनेस उसके अंदर आ जाएगी, पाकीज़गी उसके अंदर आ जाएगी। तो अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताते ये बातें, कलाम की बातें, इसीलिए हमारे बच्चों को शौक नहीं कलाम पढ़ने का। अगर आप अपने घर में कैलेंडर लगाते हैं, बाइबल की वर्सेस के चार्ट लगाते हैं, तो वो बच्चों को के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। वो फिर खुद भी कहते हैं कि हम कलाम को सीखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली बच्चे अपनी बड़ी बड़ी अच्छी ड्राइंग्स बनाकर अपने रूम्स में लगाते हैं, क्योंकि ये कलाम बचपन में उन्हें सिखाया नहीं जाता। आज हम सीख रहे हैं शख्स निजात दहिंदा के ताल्लुक से। मैंने बताया कि निजात दहिंदा यीशु को गैर कौमें भी मानती है,
और बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो अलानिया यीशु को नजात दहिंदा नहीं कहते, लेकिन वो दिल से रिसीव करते हैं, क्योंकि उनके घर में यीशु नाम से शिफा आई, उनकी बेटी को शिफा मिली, उनके बेटे को शिफा मिली। वो चर्च में गए, वहाँ पर उन्हें शिफा मिली, उन्होंने वहाँ पर सीखा। चर्च में बाइबल में से पादरी ने, पास्टर ने, एक मुकर्रर किए हुए शख्स ने उन्हें बताया कि यीशु नजात दहिंदा है। उन्हें इस बात की समझ आ गई। लेकिन शख्सी नजात दहिंदा, जब तक कोई शख्स यीशु को नहीं कबूल करता, वो अब्दी जिंदगी अजीजों नहीं पा सकता। और जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अब्दी जिंदगी क्या है, हमारा ये जो बदन है, हमें खुदा ने ये इस दुनिया के अंदर पैदा किया और हम बदनी तौर पर अभी जिंदा हैं, लेकिन हम सब का ये ईमान है कि हमारे बदन के अंदर रूह है। किस किस के बदन के अंदर रूह नहीं है? हाथ खड़ा करेगा जिसके बदन के अंदर रूह नहीं है, लेकिन वो चल कर आया हुआ है चर्च में। खुदा उनका शुक्र है, छोटे बच्चों के भी बॉडी के अंदर रूह है, इसलिए उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। जी बाजी, मूसा की मामा, हम सब के अंदर खुदा ने एक खूबसूरत रूह रखा हुआ है। रूह कैसा बची होता है? हमारे अंदर जो खुदा ने दम फूंका है। जी, बाहर जो बैठे, मेरी आवाज एरन तक पहुंच रही है, हर शख्स को मेरी आवाज। रूह जैसे हम दिखते हैं, जैसे हमारा नोज है, जैसे हमारे ईयर्स है, हमारे लिप्स, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, सेम हमारे रूह के भी यही नक्शो निगार है। और खुदा ने जो हमारे अंदर दम रखा है, वो हमारी ये जो बदनी सूरत है, इसी सूरत पर हमारे अंदर रूह है। आज लोग अपना जेंडर बदलने में लगे हुए हैं और अपने आप को चेंज करने में। लड़के जो है वो लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल रखते हैं, लेकिन उनके अंदर रूह के ऐसे नहीं है। कई दफा हम लेंस लगा लेते हैं, लेकिन आपकी आंखें खुदा को ऐसी अच्छी लगती है। जब आप लेंस लगाते हैं, खुदा को नहीं अच्छा लगता। अगर लेंस वाली आंखें खुदा को अच्छी लगती तो खुदा आसमानों से आपको ऐसी आंखें देता। मैं कई दफा सोचता हूँ, खुदा ने इसलिए हमें ऐसा बनाया है, खुदा हमें ऐसा देखना चाहता है, खुदा को अच्छा लगता है। जिस तरह कई दफा छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ तरह से घर में खेलते हैं तो माँ बाप को अच्छा लगता है। और बच्चों में एक बहुत अच्छी चीज पाई जाती है कि उन्हें अपने आप को संवारना नहीं आता, और वो सोकर उठ भी जाए, वो नहीं भी नहाते, भी नहीं भी नहाए होते, माँ बाप को फिर भी वो प्यारे लग रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप के बच्चे होते हैं। हम तो सुबह उठते हैं, ब्रश करना, अपने आप को रेडी करना, तैयार करना, बेटियां क्रीमें लगाती हैं, अपने आप को प्रॉपरली बाल संवारती है, सारे काम। लेकिन बच्चों का क्या है कि वो अपने आप को तैयार नहीं करते, तो भी माँ बाप को अच्छे लगते हैं। किस किस को अपने अपने बच्चे अच्छे लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं। और किसी ने कहा है कि बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। तो अगर खुदा के आप और मैं, हम बच्चे हैं, तो खुदा को हम बहुत प्यारे लगते हैं। आपका नोज कैसे भी है, आपके ईयर्स कैसे भी है, आपकी आईज कैसे भी है, आपका कलर बहुत अच्छा है। मैं अच्छे के लिए जो लफ्ज यूज किया, इसमें सारे कलर्स आते हैं। खुदा को सारे कलर्स पसंद है, और खुदा आपको ऐसा ही देखना चाहता है। इसलिए मुबारक है वो शख्स जो अपने आप को सिंपल रखता है। सिंपल का मतलब है अपनी आईज के कलर को चेंज नहीं करता, अपने बालों के कलर को चेंज नहीं करता। खुदा को ऐसा ही अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे ही रहें, क्योंकि इसी में खुदा की खुशनुदी है और खुदा बने इंसान से प्यार करता है। इसीलिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा। लेकिन अजीजों, फिर से अपने टॉपिक पर हम आते हैं कि जो शख्स यीशु को शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करता, अभी हम सीख रहे हैं कि वो अब्दी जिंदगी नहीं पा सकता। और अब्दी जिंदगी क्या है? जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये जो बदन है, इसकी एज जो है वो 70 साल है, मर्द खुदा मूसा कहते हैं, या 80 साल है। और इससे आगे भी कई दफ़ा खुदा के लोगों को ज़िंदगी मिल जाती है। लेकिन जितनी मर्जी लंबी ज़िंदगी हो, 100 साल, 120 साल। साड़ी परदादी सी सुनती ना हम बातें, साड़ी परदादी थी, वो 130 साल की, मेरी नहीं, वो खुदा में सो गई है। वैसे लोग कहते हैं मेरा जी दादा 130 साल का था, मेरी ताई की उम्र इतनी उन्होंने उम्र पाई। लेकिन तो भी आप उससे पूछे, उम्र तो पाई, लेकिन अब वो है
हमारी उम्र जितनी मर्जी हो तो भी इस बदन ने ख़त्म हो जाना है। इस बदन को खुदा ने एक प्रोसेस बनाया है मौत का, उसमें से हम सब ने गुजरना है। लेकिन अजीजों, आज इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, जो हमारे अंदर खुदा ने दम रखा है वो कभी नहीं मरता। शरीयत की किताब में लिखा है कि रूह कभी नहीं मरती। हमारे अंदर खुदा ने जो दम रख दिया है, ये अनलिमिटेड इसकी एज है। इसकी एज साल की या 10 साल की या 100 साल की या 1000 साल की उम्र नहीं है। हमारे अंदर जो खुदा ने रूह रखी है, इसकी उम्र हमेशा के लिए है। इसीलिए जो इंसान बदन में गुनाह करता है, उसकी रूह ने उसका खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना है, क्योंकि रूह मरती नहीं है। जो रूह खुदा ने, एक दिन किसने मुझे सवाल किया, शायद रात को भाई अरसलान मुझे कह रहे थे कि बच्चे जी इब्लीस मर क्यों नहीं जाता, जो तंग बहुत करता है, हमें डिस्टर्ब करते हैं ना। वो सवाल बहुत अच्छे भाई करते हैं, मुझे सोचने पर वो मजबूर करते हैं कि इब्लीसी तस्वीरें मार क्यों नहीं जाती। लेकिन अजीजों, खुदा ने जिस रूह को बना दिया है, रूह कभी नहीं मरती। रूह को पनिश हो सकती है, रूह को अजियत मिल सकती है, रूह अगर गलत काम करती है तो उसे उसके मुताबिक उसका अज्र मिलेगा, लेकिन रूह कभी मरती नहीं। लेकिन ये बदन हमारा, ये खत्म हो जाएगा। एक वक्त आएगा, हमारी बॉडी जो है वो जितनी मर्जी हम अपने आप को संवारते हैं, बनाते हैं, रखते हैं, दिन में बार बार आईना देखते हैं, तो भी हमारा बदन एक दिन ऐसा आएगा कि मौत के अंदर गुजर जाएगा। लेकिन अजीजों, जो हमारे अंदर खुदा ने रूह रखी है, ये अगर हमेशा रहने वाली है, तो अगर ये रूह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा नहीं कबूल करेगी तो हम अब्दी जिंदगी नहीं पाएंगे। ये जो रूह की मैं बात कर रहा था कि रूह कभी नहीं मरती, इसका मतलब है रूह हमेशा जिंदा रहेगी। तो अबदी जिंदगी के लिए शख्सी तौर पर यीशु को नजात दहिंदा कबूल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रूह ने तो हमेशा ज़िंदा रहना है। अगर एक शख्स दुनिया में यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा नहीं कबूल करता, आज इस बात को याद रखिएगा, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मसीही घराने में पैदा हुआ है, वो अबदी ज़िंदगी का वारिस नहीं होगा। उसकी रूह जहन्नम के अंदर जाएगी। जो शख्स यीशु को कबूल नहीं करता, वो चाहे जितने मर्जी सजदे करता है, जितनी मर्जी दुआ करता है, जितने मर्जी रोजे रखता है, अगर एक शख्स यीशु को कबूल नहीं करता तो अबदी ज़िंदगी उसे नहीं मिलेगी। अबदी ज़िंदगी हमारी रूह के लिए है, हमारे बदन के लिए नहीं है। ये बदन फानी है, इसने ख़त्म हो जाना है। कोई शख्स बहुत ज़्यादा वो खुदा के साथ चलता है, अपने माबूद के साथ चलता है, लेकिन आज तक अगर उसने यीशु को नहीं जाना तो उसे हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। उसके अंदर जो रूह है वो आसमानों पर नहीं जाएगा। ये बाइबल मुकद्दस का कॉन्सेप्ट है। आप और मैं, हम सब मुबारक है कि हम मसीही खानदान में पैदा हुए और हमने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। और जिस जिंदगी ने अभी तक यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा नहीं कबूल किया, मेरा ये ईमान है कि आज वो शख्स इस चर्च से जाने से पहले जीसस को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेगा। क्योंकि आज यही तो हम सीख रहे हैं कि नजात दहिंदा का मतलब है छुड़ाने वाला, रिहा करने वाला, आजाद करने वाला, मखलसी देने वाला। लेकिन शख्सी नजात दहिंदा हमें नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। लेकिन अजीजों, अगर बाइबल मुकद्दस को आप बागौर पढ़ें, सारे सुनिएगा गौर से, शख्स नजात दहिंदा का मतलब बताने लगा हूं। अगर एक शख्स बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ेगा तो बाइबल मुकद्दस उसे ये सिखाएगी कि शख्सी नजात दहिंदा का मतलब ये है, जिस तरह कई दफ़ा बच्चों में से एक माँ के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनमें से कई दफ़ा मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो मामा की टांग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरी मामा है। दूसरे बच्चों को कह रहे होते हैं ये मेरा पापा है। कभी आपके बच्चों ने ऐसे किया हो, आपकी टांगों को पकड़ा हो? बच्चे माँ बाप के साथ लाडियाँ भी करते हैं ना, उनकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। जिसके बच्चे उसकी गोद में बैठते हैं, जी मसद है, बड़े हो गए, लेकिन हम तो अभी भी गोद में बैठ जाते हैं।
ये मुबारक बात है। माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके बच्चे उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ लिपटते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी खुदा ने ये पाक हमें रिश्ता दिया है। और शख्सी निजात दहिंदा का मतलब है कि यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की मेरे लिए, दूसरों का मुझे नहीं पता। यीशु इस दुनिया में आए मेरे लिए, दूसरों का मुझे नहीं पता कि दूसरों के लिए यीशु आए या नहीं, लेकिन मेरे लिए यीशु इस दुनिया में आए। मेरे लिए यीशु ने सलीब पर दुख अपनी पाक जान को कुर्बान किया। मेरे लिए यीशु ने अपना पाक खून बहाया। मेरे लिए यीशु मर गए, मेरे लिए यीशु जिंदा हुए। दूसरों का मुझे नहीं पता, मुझे यही पता है कि यीशु मेरे लिए इस जमीन पर आए, मेरे लिए मर गए, मेरे लिए जिंदा हुए, अब मुझे लेने आने को है। ये है शख्सी आपका यीशु के पर फेथ। जिस शख्स के अंदर ये फेथ नहीं है वो शख्स अब्दी जिंदगी नहीं पाएगा। उसे पता ही नहीं कि यीशु किसके लिए निजात यीशु ने दी है। हम कहते तो है यीशु निजात दहिंदा है, यीशु तो सारी दुनिया के लिए निजात दहिंदा है, लेकिन क्या यीशु आपके लिए निजात दहिंदा है? क्या यीशु आपके लिए इस जमीन पर आए? जब आप पर्सनली यीशु के साथ अपने ताल्लुक बनाएंगे तो आप यीशु के साथ साथ जिंदगी गुजारेंगे। जीसस को अच्छा लगता है जब एक कोई शख्स पर्सनली बच्चों की तरह कहता है ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। दूसरे बच्चों को कई दफा वो छोटे बच्चे साइड पर कर रहे होते, मामा मैनू ही चुकना है, ऐना नहीं चुकना क्योंकि तू मेरी मामा है। तो जब एक शख्स यीशु से कहता है कि तू जीसस मेरा है, मुझे दूसरों का नहीं पता, ऐसा रिश्ता हमने खुद क्रिएट करना है, हमने खुद बनाना है। ऐसा रिश्ता, पाक रिश्ता यीशु के साथ हमने खुद पैदा करना है। बच्चे माँ बाप से, कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी डांट खाते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं वो शरारती भी बड़े होते हैं, तो माँ बाप से वो पैसे भी ज्यादा ले लेते हैं, दूसरों से ज्यादा वो चीजें ले लेते हैं। उसकी रीजन क्या है? वो लाडियां बोतियां कर देने, माँ बाप ने एवं मस्तियां की जानी है, झूठियां मस्तियां। माँ बाप को उन पर प्यार आता है, माँ बाप उन्हें पैसे देता है, उन्हें चीजें। लेकिन यीशु के साथ जब आप सिंसियर होकर यीशु से प्यार करते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि मैं अंजील मुकद्दस को खोलती हूँ क्योंकि अंजील मेरे यीशु के पाक मुंह की पाक बातें हैं, आज मैं अपने बादशाह की पाक बातें पढ़ूंगी। अंजील तो हम रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन इस फेथ से, इस तड़प से, इस पैशन से, इस सोच से कि ये मेरे यीशु की मुंह की बातें हैं, जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं पैदा होती कि यीशु मेरा है, हम शख्सी निजात दहिंदा यीशु को नहीं मानते। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि यीशु आपका है, तो उस दिन यीशु से आप पूरी बरकत को रिसीव करेंगे। जीसस आपको, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके हालात को, आपके कारोबार को जीसस चेंज कर देगा, क्योंकि जीसस को पता है कि ये बेटी मुझसे बड़ा प्यार करती है, इस बेटी ने अपना शख्सी निजात दहिंदा मुझे माना हुआ है, इस बेटे ने मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा माना हुआ है। और जब आप ये दिल में रख लेंगे कि मुझे गुनाहों से आजाद सिर्फ यीशु ने किया है और मैं यीशु के साथ अब चलूंगी क्योंकि वो मेरा यीशु है, तो अजीजों उस वक्त आपके अंदर इटर्नल लाइफ आ जाएगी, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी आपके अंदर आ जाएगी। दुनिया में रहते हुए भी आप आसमानी शहरी बन जाएंगे। आज हमने सीखा कि रूह कभी मरता नहीं है। हमारे अंदर खुदा ने जो दम फूंका ये कभी नहीं डेड हो सकता, कभी ये दम नहीं मर सकता, इसलिए इस दम ने हमेशा जिंदा रहना है। और जो शख्स यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा, उसके अंदर जो खुदा ने रूह रखा है ये हमेशा यीशु के साथ रहेगा। और जो शख्स इस बदन में रहते हुए, इस बदन के पिंजरे के अंदर हमारी रूह है, और जो शख्स इस बदन के अंदर रहते हुए खुदा के साथ नहीं चलता, गुनाहों में जिंदगी गुजारता है, वो मरने के बाद कैसे हो सकता है कि यीशु के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। और जो शख्स इस बदन के अंदर जीसस के साथ रहता है, बदन की आपको पता है बड़ी खाशी, सबको पता है, हाथ खड़ा करेंगे, किसके बदन के अंदर से कभी कोई खाश नहीं निकलती? रोटी, भूख लगी हुई है,
ये बदन कहता है मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ये हमारी बॉडी कह रही है, ये बॉडी की ख्वाहिशें। इसी तरह जब आप रूह से यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेंगे कि यीशु मेरा है, दूजिया ना मैनू नहीं पता, लेकिन मुझे यही पता है कि जीसस मेरा है, मेरे लिए जीसस आए, मेरे लिए जीसस ने दुख सहे, मुझे गुनाहों से छुड़ाने के लिए यीशु ने सलीब को इख्तियार किया और यीशु मेरे लिए मर गए ताकि मैं जिंदगी पालूं। जब आप अपने यीशु के साथ अपना इस तरह यीशु से बात करेंगे कि यीशु मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, यीशु आपका शख्स नजात दहिंदा बन जाएगा। और उस वक्त फिर आपकी जिंदगी के अंदर अजीब काम होंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। ये जीसस के अंदर से खूबियां हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी। अजीब काम खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। आप खुद फील करेंगे कि जब से मैंने यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, मेरी जिंदगी में बड़ी बरकतें आ गई, मेरे हालात बदल गए, मेरा घर बदल गया है, मेरे बच्चे बदल गए हैं, हमारे घर के अंदर जो झगड़े थे वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है। आज से अजीजों, जब भी आप दुआ करें जरूर कहा करें कि जीसस तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दुनिया में आज तक मुझे जो भी रिश्ते मिले वो जिस्मानी है, लेकिन तू ऐसा जीसस मुझे रिश्ता मिला है, मरने के बाद भी तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ रहूँगी और मैं हमेशा तेरे साथ जिंदा रहूँगी। आज से अजीजों अपनी ज़िंदगी में इन बातों को ले लें कि यीशु आपका शख्स नजात दहिंदा है। अभी ये जितनी भी बातें हमने सुनी है, ये कलाम की अभी स्टार्ट की बातें थी। अभी जो कलाम की तलावत हमने की थी उसकी तशरीह सारी रह गई है और टाइम ख़त्म हो गया है। अभी बेसिक्स चीज़ें हम सीख रहे थे, लेकिन जो तलावत दोबारा से मैं आपके लिए करता हूँ, लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लफ्ज़ ये जो फर्जंद है इसका मतलब है बेटा। जितनों ने यीशु को अपना शख्स नजात दहिंदा बना लिया, जितनों ने यीशु को अपना शख्स नजात दहिंदा कबूल कर लिया, खुदा ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और आगे लिखा है यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यीशु नाम अजीजों मुबारक और पाक नाम है। मैं हमेशा बताता हूँ, आज फिर बताने लगा हूँ, दुनिया के अंदर और बाइबल मुकद्दस के अंदर भी कोई ऐसा नाम नहीं, यीशु के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं जिस नाम से शिफा मिले या जिस नाम से रिहाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। सिर्फ यीशु वो नाम है जिससे बदरूहें भी डरती हैं, बदरूहें भागती हैं, इस नाम से निजात मिलती है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आगे लिखा है कि वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से, खून के अंदर सारी ख्वाहिशें पाई जाती हैं। अगर इंसान की बॉडी के अंदर से आखिरी कतरे तक भी खून निकाल दे तो हमारी बॉडी के अंदर से ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि खून के अंदर जिंदगी पाई जाती है। वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। जितनों ने यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है वो लोग खुदा से पैदा हो जाते हैं। इंसान से, औरत से जो शख्स भी पैदा होता है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, उसकी जिंदगी दुखों से भरी है। लेकिन जब आप और मैं हम खुदा से पैदा हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर शादमानी और बरकतें आ जाती हैं। फिर दुनिया के दुख परेशानियां हमें फील ही नहीं होती, वो आती हैं और ठहरती नहीं है, चले जाती हैं। खुशियां गम ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ईमानदार लोग जिन्होंने यीशु का अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है वो इन दुखों से परेशान नहीं होते। आज अजीजों हम अपनी जिंदगी में यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हुए ये दुआ करेंगे कि जीसस पर्सनली शख्सी तौर पर अपने साथ मुझे हॉली फेलोशिप रखने का फजल अता कर, मुझे पाक रिश्ता अपने साथ बनाने का फजल अता कर। आइए आंखें बंद करेंगे।